नमस्कार दर्शकों, मैं रंजीत दत्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एडू टॉक पे। एनजे चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित इस एडू टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि एनजे चैरिटेबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्थान है जो कि आने वाली युवाओं के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने में, उन्हें स्वावलंबी बनाने में और उन्हें एक जिम्मेवार इंसान बनाने में हर संभव प्रयास कर रही है। और ये सारी प्रयास जो उनकी होती है, जिन युवाओं के प्रति होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके तहत हम लोग कैरियर गाइडेंस देते हैं और हमारे वेबसाइट पे अगर आप विजिट करें तो आपको काफ़ी सारी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बातें आपको जानने में आएँगी। हमारा वेबसाइट है www.njcf.in। आज चलते हैं हम एक नए करियर की तरफ। पिछली बार आपने देखा था कि एविएशन इंडस्ट्री में लोग कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे मर्चेंट नेवी की। तो मर्चेंट नेवी में कैसे करियर बनता है, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आती है और उसकी तैयारी कैसे की जाती है, ये सारी सवालों का जवाब मैं आपको एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो के ज़रिए देना चाहूँगा, जिसमें कि आप काफ़ी सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके मन में प्रश्न है, उसके लिए आप पेन और पेपर लेके बैठें और जो मन में डाउट आता है आप उसे हमें लिख भेजिए या यहाँ पे चैट पर आप टाइप करें। हम इस वीडियो के अंत में आपके पूछे हुए सवालों का ज़रूर जवाब देंगे और आपके सवालों का मैं समाधान भी। तो आइए चलते हैं, हम उस वीडियो को देखते हैं जिसमें कि आपको एक ब्रीफ मिलेगा मर्चेंट नेवी के कैरियर के बारे में। आइए तो हम देखते हैं उस वीडियो को। Namo Nama friends. Friends, sailing the sea has been a hobby of humankind from the ancient time. And that's how the foreigners have come to India. We know the Vasco da Gama and other person who came through the seas by sailing the sea. So today we are going to talk about the merchant navy. What is merchant navy? Is there any career opportunity there? Yes. Human being, the mankind has reached high in the sky and deep under the sea. So there are vast career opportunity even in merchant navy. You know, today 7% of world's merchant mariner are Indian. So on any ship you will find at least one Indian on the ship. The merchant navy is a fleet of ships which is responsible for carrying cargo and passengers, focused on international trade and commerce. So let us learn about the career opportunities in merchant navy. I have Mr. Ranjit Datta to share some information about merchant navy. So Ranjit, tell us what are the types of ships in merchant navy? Basically, if we divide the types of ships, there are two types of ships broadly. One is passenger ship and other one is cargo ships. Sometimes we call vessels also. The cargo ships, we term them as vessels, which carry some fluids. So basically, broadly, we divide them in two categories, passenger and cargo. And how many departments are there on the ship? Basically, there are three departments functional for any merchant navy ship. First is deck department, second one is engine department, and third one is catering department. What are the job roles in the deck department? Well, deck department is the responsible department for the management of entire ship, how it will proceed and what are the things has to be catered to the passengers, or what route has to be taken, what are the international laws which has to be met, and how the ship will be taking the routes with the signals and all those things are taken care by the deck department. Basically, that is the management of the floor, we can say, with what we see in the retail management. So that is the similar kind of job role for the deck department. When we talk about engine department, Can you name the designation of the deck department? well, deck department is
actually headed by captain of the ship, and which is the senior most position or highest level in the ship. They are assisted by chief engineers and also other catering department staff. But for particularly deck department, they are assisted by the second mate, third mate, bosuns, and able seaman. And what are the job roles in engine department, and how many designations are there in engine department? Well, if we talk about engine department, it is totally talking about engineering, which is functional. There are several meters and there are several parameters which has to be monitored regularly, and they have the chief engineer who is at par with the level of captain of the ship, and sometimes they are also termed as captain's key. They are the person who will instruct or direct other engineers that what are the things to be monitored and how the things has to be catered or how the things has to be taken care for any functionalities of the ship. They are assisted by the second engineers and third engineers and also the mates. तो जनरली इंजीन डिपार्टमेंट में कितने इंजीनियर्स होते हैं किसी भी एक शिप पे? अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंजीनियर्स की, तो वो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि वो कितना बड़ा जहाज है और कितने जहाज़ों का कतार एक साथ चल रहा है. फ्लीट चलते हैं, जैसे कि आपने बताया कि फ्लीट्स चलते हैं मर्चेंट नेवी में, एक साथ एक ही कतार में काफ़ी सारे जहाज़ें चलते हैं, और उन सब जहाज़ों का हो सकता है कि चीफ इंजीनियर एक ही हो कभी कभी. अदरवाइज मोस्टली चीफ इंजीनियर हर एक जहाज़ों का एक एक चीफ इंजीनियर होते हैं. वो असिस्ट करने वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेकंड इंजीनियर, और उनको असिस्ट करने वाले जो लेयर्स होते हैं उसको थर्ड इंजीनियर्स बोलते हैं. तो अगर हम जनरल अगर बात करें एक शिप की, तो 50 से 60 इंजीनियर्स भी हमारे होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, जो कि सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर्स होते हैं. और इन सब के अलावा जो सीखने वाले ट्रेनिंग्स होते हैं जिनको हम लोग कैडेट इंजीनियर्स बोलते हैं, वो भी इन सब चीज़ों को असिस्ट करते हैं. एंड व्हाट आर द जॉब रोल्स इन द कैटरिंग डिपार्टमेंट? वहाँ पे कौन कौन होता है और उनकी ड्यूटीज क्या होती है? कैटरिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनका मेन जो है काम वो हाउसकीपिंग और फूड चेन सप्लाई का होता है. जो हमारे पैसेंजर शिप हो या फिर हमारा कोई मर्चेंट नेवी का शिप हो, तो वहाँ पे जो भी लोग चल रहे हैं उनका जो खाना होगा, वो खाना बनाने का काम, टाइम टू टाइम उनको खाना देने का काम, और उनका जो भी मतलब नीड है खाने के टर्म्स में, अगर उनको हेल्दी डाइट में भी रखना पड़ता है, और वो वेदर कंडीशंस के हिसाब से लोगों को फ्रेशनेस भी करना पड़ता है कायम, और जो क्लीनलीनेस है, क्योंकि अगर क्लीनलीनेस नहीं रहेगा तो वहाँ पे एपिडेमिक अटैक कर सकता है. तो ये सारा डिपार्टमेंट जो है देखा जाता है, वो काम होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट का, जिसको कि हेड करते हैं एक शेफ, जिसको कि कैप्टन शेफ भी कहते हैं. और उनकी असिस्ट करने के लिए डिफरेंट लेयर्स ऑफ शेफ्स होते हैं. पर्टिकुलरली वहाँ पे कभी कभी पार्टी शेफ्स के नाम से भी आते हैं, जो कि पर्टिकुलरली एक इवेंट के लिए काम करते हैं, और ये इनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ क्रू मेंबर्स होते हैं जो कि उनको कैटरिंग में सपोर्ट करते हैं. लेकिन लिस्ट करना कि क्या खाना बनेगा और कितने बजे बनेगा और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत चाहिए, ये सारा लिस्ट जो है हमारे शेफ के थ्रू मिलता है, और वो शेफ डायरेक्ट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को कि किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है. किसी को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जी, अगर किसी को एज ए मैरिनर कैरियर बनाना है तो उनको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसका नाम है IMUCET. इट स्टैंड्स फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये आप अगर ध्यान देंगे, आपके पेरेंट्स होंगे जो कि मैरिनर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स रहे हैं, पहले ये IIT एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, और उससे भी पहले अगर बात करें तो वहाँ पर ट्रेनिंग शिप चाणक्य और ट्रेनिंग शिप राजेंद्रा कह के 2 ट्रेनिंग शिप होती थी, और उनका ऑटोनोमस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था. लेकिन आज के दौर पे अगर हम बात करें तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है इनके वेरियस कैंपसेस के लिए और इनके वेरियस कोर्सेज के लिए. तो इस एग्ज़ाम में आपको अपीयर करना होगा और उसको आपको क्लियर करना होगा, जबकि आपके मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के साथ आपका कैरियर स्टार्ट हो.
इंडिया में मैरीटाइम इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे है? अगर हम बात करें मेरीटाइम यूनिवर्सिटीज के, तो उसके 7 कैंपसेस हैं, जिसमें कि बॉम्बे और कोलकाता बहुत ही पुराना और बहुत ही एडवांस्ड स्टेज का यूनिवर्सिटी कैंपस माना जाता है। इसके अलावा आपका चेन्नई में है, और इनसे एफिलेटेड करीब 50-60 कॉलेजेस हमारे अभी अवेलेबल है, जिससे कि आप एडमिशन ले सकते हैं और सिमिलरली आप वहाँ का डिग्री पा सकते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू एनी प्राइम टाइम यूनिवर्सिटी कैंपस कोर्सेज। करीब 15-20 इंस्टीट्यूट बहुत ही प्राइम लेवल पे हैं। हम अगर 2-4 नाम लेना चाहें तो उसमें है एंग्लो ईस्टर्न मेरीटाइम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग शिप रहमान मुंबई में, और तारातोला कोलकाता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में माने जाते हैं। यहाँ पे सभी इंस्टीट्यूट्स में आपके प्लेसमेंट 100% होते हैं। इनफैक्ट आपको हमेशा मेरीन इंडस्ट्री में लोगों की कमी रहती है, जैसा कि आपको शुरुआत में बताया गया कि इंडियन मेरीनर्स का बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है वर्ल्ड वाइड, और 7% मरीनर्स जो हैं वो इंडियन है, और आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारा मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और देश विदेशों से यहाँ पे कैंडिडेट्स आते हैं, और यहाँ से ट्रेनिंग शिप में से कैंडिडेट्स को ले जाते हैं कैंपस इंटरव्यू में। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड होते हैं? आप नाम बता सकते हैं क्या प्रोग्राम का? यहाँ पर 3 लेवल्स के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं। एक होता है डिप्लोमा लेवल का, दूसरा होता है ग्रेजुएशन डिग्री का, और तीसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का। तो यहाँ पर नॉटिकल साइंस पे हमारा बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री होती है, या हमारा बीटेक नॉटिकल साइंस की भी डिग्री आती है, जो कि इंजीनियर्स के लिए होते हैं। उसके अलावा हमारा एमटेक और एमएससी नॉटिकल साइंस का डिग्री दिया जाता है। और अगर सिंपल एज ए क्रूमैन आपको स्टार्ट करना है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो आप डिप्लोमा कोर्स करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, या दूसरा आप डिप्लोमा कोर्स कर लेने के बाद ग्रेजुएशन भी नॉटिकल साइंस में कर सकते हैं। तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको डिप्लोमा लेवल का कोर्स करने से ही स्टार्ट हो जाता है। मर्चेंट नेवी में करियर बनाने के अट्रैक्शन कौन कौन से हैं? किस बात से लोगों को अट्रैक्शन होता है कि अच्छा यहाँ पे अच्छा करियर बन सकता है? क्या इंटरेस्टिंग है वहाँ पे? अगर हम बात करें किसी भी कैरियर की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है पैकेजेस का, सैलरी पैकेजेस का, और ये चीज़ मर्चेंट नेवी में बहुत हाई है, बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, इनका जो भी इनकम होता है, क्योंकि ये लोग देश से बाहर जाते हैं, देश से बाहर रहते हैं, तो इसके लिए इनका सारा इनकम जो है टैक्स फ्री होता है। तो इसके लिए उनको फॉरेन करेंसीज में भी मिलती है सैलरीज। तो इस तरीके से हमारे देश को जो है फॉरेन करेंसीज का भी इनकम होता है। और इन लोगों का जो पैकेज है वर्ल्ड है, वाटर का जो ये एक्साइटमेंट है, ये बहुत ही अट्रैक्टिंग होता है, और इसका ग्लैमर जो है जुड़ा हुआ इसके साथ, जो आप किसी भी पोर्ट पे जाके आप शॉपिंग कर रहे हैं, ये ग्लैमर्स जो है ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री के लिए। जैसे अट्रैक्शंस है, वैसे कुछ चैलेंजेस भी हो गए, तो आप थोड़ा चैलेंजेस पे भी थोड़ा सा लाइट थ्रो कर दीजिए, ताकि किसी को करियर डेवलप करनी है तो उसको प्रोज एंड कॉन्स सारे पता होने चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं इतना हाई सैलरी है, तो बिल्कुल बहुत सारा हाई रिस्क भी फैक्टर्स के साथ जुड़े होंगे। तो पहला चीज होता है कि आपको घर से बहुत टाइम के लिए दूर रहना होता है, 6 महीने 8 महीने। कोई रूल है क्या कि मिनिमम तो इतना महीना या मैक्सिमम इतने महीने तक आप घर से दूर रह सकते हो, देन यू विल गेट द हॉलीडेज? जी, इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो वॉयज है कहाँ के लिए जा रहा है। तो फिर भी जो मिनिमम रूट होता है वो 6 महीने का ऑलमोस्ट होता है। आप 6 महीने शिप पे ऑन बोर्ड रहते हो, और फिर 3 महीने 4 महीने का आपको ऑफशोर में आपको मिलता है हॉलीडेज या वैकेशन। उसके बाद फिर से आप दूसरे वॉयज पे जाते हो, और ये सारा जो लीव होता है वो पेड होता है। तो इस तरीके से वो मतलब आपका एक चैलेंज ये आता है कि आप कितने दिन तक घर से बाहर रह रहे हो। दूसरा, वेदर कंडीशंस जो वाटर लेवल पे होता है वो बहुत ह्यूमिड होता है, और किसी किसी को नौशा वॉमिटिंग होती है, सी सिकनेस जिसको बोलते हैं वो आ जाता है शुरुआत के दौर में। तो ये सारा चीज़ आपको चैलेंजेस मतलब हेल्थ कंडीशंस के लिए भी आता है।
फिर हम बात करें सी रूट्स भी की, तो कभी कभी हमारा मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे वेदर कंडीशंस खराब होती है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी मतलब आदमी को ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाता है स्टॉर्म्स वगैरह फेस करने के लिए, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है उस टाइम पे खुद को मैनेज करना। और पैसेंजर सीट में है तो पैसेंजर को मैनेज करना, उनके ट्रॉमा को, पैनिक को बिल्कुल कूल डाउन करके रखना, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट चैलेंज। इसके और अलावा पायरेसी का भी कभी हाँ, मैं कभी वही आपको पूछने वाली थी कि पायरेसी का डर अभी भी रहता है। अभी भी कुछ एक कंट्रीज हैं जो कि मतलब आपको दे आर वेरी कॉमन इन द इंडियन ओशन, तो वहाँ पर आपको पायरेट्स आते हैं, आपको कब्जा करते हैं। और जो आपका ऑयल ट्रैफिकिंग का होता है, खास तौर पे वो वेसल्स को वो लोग कब्जा करते हैं और उसको मतलब होस्टेज बना के फिर वो लोग डिमांड करते हैं, ये करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो दूसरा आपका जॉब तो चैलेंजिंग इस हिसाब से भी रहता है कि आपको सारा हिसाब किताब भी मेंटेन करना होता है, जिसका भी आप सामान लेके जा रहे हैं या जो भी पैसेंजर्स लेके जा रहे हैं, दे आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी पे वो लोग जा रहे होते हैं, तो ये सारा सेफ्टी लोगों का देखना, ये सारा काफ़ी चैलेंजिंग होता है। So, friends, there are challenges, but apart from these challenges, the career in merchant navy is very interesting. It is just like sailing the sea and enjoying the life, but always the job is a job, and the more you learn, the more you earn. So, develop a good career. Thank you. तो आपके बहुत सारे सवालों का आपने जवाब पा लिया होगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ एक सवाल आए हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे। एक पहला सवाल आया है कि क्या लड़कियां मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती हैं? तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इन पिछले कई दशकों में यहाँ पर मर्चेंट नेवी में लड़कों का वर्चस्व था, मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री था। लेकिन अभी पिछले दशक में अगर हम बात करें तो मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत सारी लड़कियां कैडेट्स आई हैं और बहुत सारे शिपिंग कंपनीज जो हैं जेंडर बायसनेस को न्यूट्रलाइज कर रही है और उसमें लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है और लड़कियां भी वहां पे हर एक डिपार्टमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं और अपना कैरियर बना सकती हैं। एक और सवाल आया है कि इसमें रेमुनरेशन कितना होता है, पर्टिकुलरली बोसन्स लेवल में और बाकी सब। ओके, तो अगर हम बात करें लोएस्ट लेवल जो होता है वो मेट्स का होता है, तो उनको 800 से $1000 का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है, जो कि आपका साफ सफाई का काम करते हैं या फिर आपके इंजीन डिपार्टमेंट में जो ऑयलिंग का काम करते हैं, उनका मिनिमम सैलरी जो है वो स्टार्ट होता है $1000 के आसपास, जो कि हम अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो वो करीबन 80,000 रुपए हो, राइट? तो अभी ये पर मंथ की सैलरी है। वहीं हम अगर बात करें कि चीफ इंजीनियर्स हैं या कैप्टन है, जो कैप्टन है उनका सैलरी पैकेज 8-10 हजार से लेके $15-20 तक पर मंथ का होता है और दैट इज द हाईएस्ट लेवल। सिमिलर पैकेज आपके चीफ इंजीनियर्स के भी होते हैं, लेकिन उनका हाईएस्ट जो लेवल है, स्केल है, वो $12,000 तक जाता है। और यही चीज जो है आप कैप्टन है उनका करीबन $15,000-20,000 तक जाता है। लेकिन जो प्रमोशन होता है उनका ग्रेडिंग सिमिलर ग्रेड के होते हैं, एक कैप्टन और एक चीफ इंजीनियर, इसके लिए उनका उस लेवल पे सिमिलर पैकेजेस होते हैं। अगर सेकंड इंजीनियर्स की बात करें या थर्ड इंजीनियर्स की बात करें, उनका $6,000 के आसपास पर मंथ का सैलरी होता है। इन सब डॉलर्स के सैलरी के अलावा उन लोगों को फ्री एकोमोडेशन और फ्री लिविंग का अलाउंसेस मिलता है। पोर्ट में जब वहां पे उन लोगों को एंकर किया जाता है तो उनको वहां पे रुकने की फैसिलिटीज दी जाती है 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि जब वो हॉलीडेज में आते हैं तो वो उनका पेड हॉलीडेज होता है, जिसमें कि उनको पूरी सैलरी उनको मिलती रहती है, वो भी फॉरेन करेंसीज में। तो इस तरीके से पैकेजेस जो है, सैलरी पैकेजेस, वो काफी हाई होती है। एक और सवाल आ रहा है कि चश्मा पहनते हैं भाई साहब तो वो जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जा सकते हैं। चश्मा पहनने वाले के लिए भी लिमिटेशन है, जिसमें कि आपका 6/6 आपका बेटर आई का होना चाहिए और 6/9 जो है आपका वीक आई का होना चाहिए, डिस्टेंट और क्लोज विजन। अब बात करें अगर जरूरत की, तो अगर आप चश्मा पहन के उसको करेक्ट कर ले रहे हैं 6/6 तक या 6/9 तक वीक आईज के लिए, तब आप वहां पे जा सकते हैं। इवन आपका लेजर सर्जरी भी अलाउड होता है करेक्शन कराने के लिए।
और आपका स्टैंडर्ड जो मेडिकल टेस्ट होता है उस एग्जामिनेशन को आपको पास करना होता है। आई साइट का जरूरत बिल्कुल होता है, क्योंकि इंजीनियर्स जो होते हैं उनको काफी सारे मीटर्स गेज करने होते हैं और उनको एक्यूरेट रीडिंग लेना उनका बहुत बड़ा रिक्विजिट कंपोनेंट है। और उसी तरीके से जो रूट्स को देखते हैं, कैप्टन जो देखते हैं, वो वेदर कंडीशन को देखना, दूर दूर तक कैसा सब सिचुएशन चल रहा है, ये सारा चीज देखना वो। और कोई भी साइन है या सिंबल है, अगर जैसे कि आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा कि चूहे भाग रहे हैं, तो ये सारा चीजों को समझने के लिए भी वो उनका आई साइट बहुत जरूरी है। और आई साइट के अलावा उनका विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको ट्रेनिंग के जरिए डेवलप कराया जाता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर है तो आप हमको दे सकते हैं। जी, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेवी एंड मर्चेंट नेवी। ओके फाइन। मर्चेंट नेवी, जहां तक आपको मैंने बताया शुरुआत में ही, कि ये लिमिटेड है सिविल गुड्स ट्रांसफर या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए। जब बात करें हम नेवी की, तो वो मिलिट्री नेवी होती है, जो कि हमारे देश की सुरक्षा में काम आती है। मिलिट्री नेवी जहां पर कि हमारे इंटरनेशनल टेरिटरीज के बाउंड्रीज पे रहते हैं और मेनली वो डिफेंड करते हैं हमारे वाटर टेरिटरीज को, जिसके थ्रू कोई बाहर का शत्रु हम पे इन्वेड नहीं कर सके। लेकिन मर्चेंट नेवी इंटरनेशनल टेरिटरी पे चलते हैं और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स को ले जाते हैं, पैसेंजर्स को ले जाते हैं, और जो वॉल्यूम रेवेन्यू टर्नओवर होता है, वो जिसको संभालने का अकाउंटेंसी का काम होता है, वो भी हमारे मर्चेंट नेवी ही करते हैं। जो कि पेपर वर्क होता है हर एक पोर्ट पे, या जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं उनको कैरी करना और उनको सही करना, ये सारा मर्चेंट नेवी का काम होता है। सैलरी पैकेजेस की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मर्चेंट नेवी में आपको फॉरेन करेंसी में इनकम होता है, लेकिन मिलिट्री उस देश की करेंसी में ही आपको मिलती है सैलरी। रिक्रूटर भी फॉरेन करेंसी देने वाले रिक्रूटर जो होते हैं वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, जबकि मिलिट्री नेवी में आपको खास तौर पे इंडिया की अगर बात करें तो नेवी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, जो कि भारत सरकार के लिए काम करते हैं, तो उनकी सैलरी भी जो है भारत सरकार पे करती है। जेंडर बायसनेस की अगर बात करें, तो जेंडर बायसनेस अभी दोनों जगह से उठ चुकी है। मिलिट्री में भी हमारे फीमेल्स इक्वली एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि मेल्स को किए जाते थे, और मर्चेंट नेवी में भी अब बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट में फीमेल्स को इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो वहां पर ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बेसिक अगर डिफरेंस की बात करें मर्चेंट नेवी और नेवी के बीच में, तो वो है कि मर्चेंट नेवी जो है वो खास तौर पे कॉमर्शियल होता है, और जो नेवी है, मिलिट्री नेवी है, वो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। ओके, एक और सवाल आया है कि क्या लोग नेवी के लोगों को लेके चलते हैं जब ऑयल टैंकर वगैरह लेके जाते हैं, तो उसमें मतलब जाना जरूरी होता है या नहीं? नहीं, अगर हम ये ऐसा कहें कि मतलब जरूरी है या नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि वो लोग नेवी को लेके जाएं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि किस रूट पे आप जा रहे हैं। कुछ जो रिस्की रूट्स होते हैं, जो पायरेट्स के रूट्स होते हैं, वहां पर लोग सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू मतलब आर्म्ड गार्ड्स को लेके चलते हैं, जो कि उनको डिफेंड करने के लिए होता है। या फिर अगर कोई बहुत ही रिस्की टेरिटरी है, तो वहां पर कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट करने के लिए भी लोग हायर किए जाते हैं, और वो लोग एस्कॉर्ट करके उस सेफ जोन तक लेके छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी मिलिट्री कॉन्वॉय को ले जा रहे हैं, या कोई देश की सुरक्षा का सामान हम ले जा रहे हैं, या किसी पीस कीपिंग फोर्स को सामान मुहैया कराने जा रहे हैं, तो जरूर वहां पे हमारे इंडियन डिफेंस के या इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के लोग होते हैं, और उस तरीके से वो लोग डिफेंड करके, प्रोटेक्ट करके लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली किसी जहाज पे डिफेंस के लोग होते हैं या नहीं होते हैं, तो दोनों तरीके से आपको मैंने बताया कि कब होते हैं और कब नहीं होते। लेकिन आमतौर पे डिफेंस के कोई भी लोग आम कॉमर्शियल जहाजों में नहीं होते। एक क्वेश्चन आया बीच में कि मैथ्स जरूरी होता है कि नहीं, तो बिल्कुल जरूरी होता है। अगर आप मर्चेंट नेवी में नॉटिकल साइंस लेके करने जा रहे हैं, तो ये बीएससी की डिग्री होती है। तो मैंने आपको जो बताया, IMO CET जो होती है, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उस पर 3 चीजों की ली जाती है टेस्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कि आपका कोर कंपोनेंट है। इसके अलावा जनरल नॉलेज
और इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट होती है। तो इस तरीके से मैथ्स जो है वो कंपल्सरी है। इसका कारण ये है कि काफ़ी सारा कैलकुलेशंस और इंजीनियरिंग आपको वहाँ पर सँभालना होता है। नेविगेशन में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल यूसेज होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपका नेविगेशन के लिए, वो एयर ट्रैफिक में हो या फिर आपके वाटरवेज़ में मैरीटाइम इंडस्ट्री में हो। इसके लिए मैथ्स सीखना ज़रूरी होता है। और कोई सवाल अगर हो तो आप हमको लिंक भेज सकते हैं। मेरे ख्याल से आप अगर इन वीडियो को देखेंगे फिर से तो आपकी काफ़ी सारी सवालों का जवाब मिल जाएगा और इसी वजह से आपका सवाल भी कम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आप हमें लिंक भेज सकते हैं। एक सवाल आया है जॉब टाइमिंग क्या होता है? तो जैसा कि बताया कि इसमें लॉन्ग आवर्स होते हैं क्योंकि आप वॉयस में जब जा रहे हैं, तो उसमें दिन और रात आपको जहाज़ तो चलाना ही है और इसीलिए शिफ्ट में ड्यूटीज़ होती हैं। तो शिफ्ट में ड्यूटी होने के कारण आपको रेस्ट का भी टाइमिंग फिक्स होता है और आपका काम का भी टाइमिंग फिक्स होता है। और इसमें आपका बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ये भी हम आपको बताएँ क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करने होते हैं कि किस तरीके से ये चल रही है और बहुत सारे पैरामीटर्स और मीटर्स होते हैं जिनको कि आपको चेक करना होता है और उसका रिपोर्ट लिखते रहना होता है। तो इसके लिए ये लॉन्ग आवर्स ड्यूटीज़ है। कभी-कभी अगर कोई आपका असिस्टेंट बीमार हो या कुछ हो और आप अगर स्वस्थ हैं, तो आपको हो सकता है कि 20 घंटे का भी ड्यूटी आपको लगातार करना पड़े और इन सब की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो मेरे ख्याल से आप सारे सवालों का जवाब पा चुके हैं और कोई जवाब अगर आपको लेना है, तो आप हमको लिख भेजिए। हमारा एड्रेस है www.njcf.in। वहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग देते हैं करियर के लिए। आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको उपाय बताए जाते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है इनकी ई-लाइब्रेरी का, मॉक टेस्ट का और इनके बहुत सारे टेक्स्ट बुक का। तो आइए आप विज़िट करें www.njcf.in और हमारे साथ जुड़ें और आप ज़रूर लिंक भेजिए अगर आपके मन में शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या प्रश्न हो। फिर हम आपके साथ आगे मिलेंगे एक नए करियर के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।